Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I'm Vikas Yadav and today we are gonna do exercise 2.3 of chapter number 2, fractions and decimals. But before that, as I ask you every time in every video that like our video, share this video and yes, subscribe our channel. Okay, press that subscribe button that is given below something there. Okay, press that and follow us on Instagram, link is given in description, and join us at WhatsApp. So now लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. ओके, इन लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन. सो टुडे we are gonna do exercise 2.3. So without any time waste, let's start these questions. So आज का हमारा first question is that we have to solve these two questions. अब हमको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ये उन्हीं क्वेश्चंस की तरह हैं जो हमने एक्सरसाइज 2.2 के अंदर करे थे, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 here. ओके, these are same as those questions. अब ना देखिए फर्स्ट पार्ट 1/4 ऑफ. अब इसके 3 पार्ट्स हैं. A 1/4, B 3/5 and C 4/3. Okay, now off means simply we know what we mean by off. So 1/4 of 1/4, it means 1/4 multiplied by 1/4. As we know, numerator to numerator, denominator to denominator, 1 1s are 1 and 4 4s are 16. This is our answer. In second case, 1/4 of 3/5, 1/4 multiply 3/5, numerator to numerator, denominator to denominator, 1 3s are 3, 4 5s are 20. Now in third case, 1/4 of 4/3. Now 1/4 multiply 4/3, so numerator to numerator, denominator to denominator, so 1 4s are 4 and 4 3s are 12. Alright, so हमको ये क्वेश्चन ऐसे तरीके से फाइंड आउट करने थे. इफ इन सम केसेस अगर हमको ए और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करे जा सकते हैं, देन वी हैव टू कन्वर्ट देम इन सिंपल फॉर्म लाइक दिस. सी पार्ट ये अभी भी और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लाइक 4 1s are 4 and 4 1s are 4, 4 2s are 4 3s are 12. So our answer can be 1/3. अब आपके बुक के पीछे 4/12 भी हो सकता है एंड 1/3. सो अगर आपका आंसर 4/12 आता है, सो डोंट पैनिक, उसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, चलिए वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज द कैनवस. नाउ सेकेंड पार्ट. Second part says 1/7 of A part 2/9, B 6/5 and C 3/10. Now first 1/7 of 2/9, it means 1/7 multiplied 2/9, it will be multiplied by this. 1 2s are 2 and 7 9s are 63. Okay, in second case 6/5 of 1/7 of n, 1/7 of 6/5. Okay, so 1/7 multiply 6/5, so numerator to numerator, denominator to denominator, so our answer will come 1 6s are 6 and 7 5s are 35. Now in third part, it is
1 by 7 of 3 by 10. So 1 by 7 multiply 3 by 10. Numerator to numerator, denominator to denominator. 1 3 is 3, 7 10 is 70. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता. सो जो नहीं हो सकता उसको हम ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे. चलिए सेकेंड क्वेश्चन. इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू मल्टीप्लाई all these numbers and we have to convert them to lowest form if possible. देखो यहाँ पे लिखा है if possible, that अगर वो simplest form में convert हो सकते हैं then we have to convert them, otherwise we have to left them as they are. So without any time waste, let's start with first question. So first question is 2 by 3 multiply 2 by 3. अब इसको हमको पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So about 2 by 3 multiply 3 2 is 6, 6 plus 2 is 8, 8 by 3. Numerator to numerator, denominator to denominator. So 2 8 is 16 and 3 3 is 9. So 16 और 9 का कोई रिलेशन नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं हो सकते सिंपलेस्ट फॉर्म में. So we will left them as they are. Second question. 2 by 7 multiply 7 by 9. अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊं. एक ट्रिक है. अब ये ट्रिक आपका बहुत ज़्यादा काम आसान कर देगी. ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से. थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मैं एक ट्रिक के अंदर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट आप लोगों को वो चीज़ दिमाग में हमेशा रखनी है, वो हर जगह फॉलो होगी. ये अभी केवल आपको मल्टीप्लिकेशन के ही केस के अंदर अप्लाई करना है. जब आप लोग इस ट्रिक को अच्छी तरह पहचान जाओगे, जान जाओगे, देन उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, आगे बताएंगे कि इस ट्रिक को और ज़्यादा जगह कैसे अप्लाई करना है. बट अभी आप सभी इस ट्रिक को केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करना है. एंड ट्रिक इज दैट अभी तक हम न्यूमरेटर 1 और न्यूमरेटर 2 को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर 1 एंड डिनोमिनेटर 1 को न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आता था न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 3, ये आंसर आता था. इसके बाद हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कट करते थे, उसके बाद हम इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे. क्यों ना हम इनको यहीं पे पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर बाद में वैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा. मेरी बात समझे? सो फर्स्ट केस तो ये था. सेकंड केस, ये सेकंड पॉइंट, इसके बाद क्या करना है. अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के केस में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता था, तो हम उनको काट के जो हमारा आंसर आता था वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता था. मेरा मतलब समझ रहे हो? लाइक जो हमारा आंसर आता था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो इन्हीं फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ करता था, यानी कोई भी चेंजेस नहीं होते थे. अब तीसरा केस जो है देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. हम एक ही फ्रैक्शन के अंदर कटिंग कर सकते थे, बट अगर हम दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हम अभी तक केवल अपने ही फ्रैक्शन में काट रहे थे. बट ये मल्टीप्लिकेशन के केस में आप पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर भी कट कर सकते हो, या फिर पहले केस के न्यूमरेटर से दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी कट कर सकते हो, अगर ये दोनों आपस एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो. ऑलराइट, ये चीज बहुत ही ध्यान रखना. मैं फिर से समझा दे रहा हूं दैट अगर न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लिकेशन बाय न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2, अगर ऐसा केस आ रखा है, और ऑफ कोर्स आपको आगे जाके यही ऐसे केस देखने को मिलेंगे, और वहां पे अगर न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 के बीच में कोई रिलेशन है, यानी अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के टेबल में आते हैं या एक दूसरे से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो सिंपली इनको यहीं काट दो. ओके, इनको यहीं पे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. और अगर पहले केस में डिनोमिनेटर 1 का और न्यूमरेटर 2 का कोई रिलेशन है,
सो आप इनको भी यहीं पे कट कर सकते हो, इन दोनों को। और अपने फ्रैक्शन के अंदर तो ये रिलेशन बना ही नहीं है। अगर इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है तो हम काट ही सकते हैं, नहीं आते तो नहीं काटते। ओके, आप देखना अब आपका क्वेश्चन कैसे फटाफट होगा। ऑलराइट, सो मैं रब कर रहा हूँ पहले ये वाला पार्ट। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो सो नोट डाउन कर लो, तब तक हम सोल्यूशन कर लेते हैं। ओके, नाउ देखो, अब यहाँ पे न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 2, दूसरा फ्रैक्शन है ये पहला फ्रैक्शन है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर 1 और न्यूमरेटर 2, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ये दोनों 7 है और 7 कटते हैं आपस में। सो मैं 7 को और 7 को कट कर दूं, 7 बन जाए 7, 7 बन जाए 7। सो ये क्या बन जाएगा, 2/1 मल्टीप्लाई 1/9। मेरा काम यहीं पे सबसे ज़्यादा सिंपल हो गया। अब मैं इस 2 को बस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 को 9 से करूंगा, मेरा आंसर आएगा 2/9। मेरे को और कुछ करने की जरूरत। अब देखो फटाफट थर्ड केस। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हम देखेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा। 3/8/6/4। अब यहाँ देखो, न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 2 के बीच में रिलेशन है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ओके, अब आप कहेंगे दैट 8 और 6 का भी तो रिलेशन था, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। सो यहाँ हम इनको भी काट सकते थे, बट मेरे को ये भी मैं यहाँ से भी काट सकता था, मैं यहाँ से भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता था। अब यहाँ पे रिलेशन मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिवीजन चलता है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर के बीच में कटिंग नहीं चलती। हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काटा जाता है। ओके, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से नहीं काट सकते। कहीं आप सोचो कि ये 3 है और ये भी 3 है, इन दोनों को काट देता हूँ, नो। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते हैं, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कटिंग होती है, लाइक दे डिवाइड ईच अदर। उनसे आपकी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। 3 will be multiplied to 3, it will become 9 and 8 2 just 16। अब 9 और 16 का कोई रिलेशन नहीं, ये और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ओके, सो नोट डाउन these parts because I am going to erase all the screen। Okay, now fourth part, 9/5 मल्टीप्लाई 3/5। अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 सेम है। अब आप ये मत सोचना कि इन दोनों को मैं काट दूंगा, नो। न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे भी 9 और 3 थे, आप कहीं सोचो मैं 9 और 3 को काट दूं, नो। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ओके, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड करते हैं इफ उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। अगर रिलेशन नहीं है तो हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो 9 3 जा 27, 5 5 जा 25। अब ये तो और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर हो नहीं सकते, सो हम इनको यहीं छोड़ देंगे। फिफ्थ पार्ट, 1/3 इंटू 15/8। अब यहाँ पे देखना, 3 का और 15 का बीच में रिलेशन है। ये डिनोमिनेटर 2 है और ये न्यूमरेटर 1 है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये बन जाएगा 1/1, 5/8। 1 multiplied to 5, 1 multiplied to 8, it will become 5 1/8। 5 और 8 के बीच रिलेशन नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है। नाउ 11/2, 3/10। कहीं किसी का कोई रिलेशन नहीं है ऊपर नीचे, सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 33/20। नो रिलेशन बिटवीन देम, सो हम उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। सेवंथ पार्ट, 4/5, 12/7। अब देखिए, यहाँ पे किसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 12 जा और 12 4 जा 48, 5 7 जा 35। ओके, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैंने कैसे करा, आप लोगों को एक ट्रिक बताई, वो ट्रिक अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इफ़ यू डोंट वांट अप्लाई दिस देन सॉल्व करते रहिए, टाइम वेस्ट आपका ज़्यादा होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन में भी हमको ऐसे ही करना है। So without any time waste, let us multiply these all the questions. So first part, 2/5 multiply 5 1/4.
सो 4 5 20, 20 plus 1 21, 2/5 अपॉन इंटू 21/4। अब यहाँ देखिए न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 के बीच में रिलेशन है, सो मैं कट कर दूंगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 मल्टीप्लाई टू 21, 5 मल्टीप्लाई टू 2, सो 1 21 जा 21, 5 2 जा 10। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हमको लाइट की स्पीड से आगे बढ़ना है, बहुत फास्ट करने हैं। जितनी ज़्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज आप बैठे रहेंगे मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे किसी का भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सो न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे 32 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो मेरा आंसर आएगा 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 1 22। कैसे आया मल्टीप्लाई करके देख लेना। 5 9 जा 45, ये मेरा आंसर आएगा। इन थर्ड पार्ट 3/2 मल्टीप्लाई 5 1/3। ओके, सो 3/2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करूंगा मैं। 3 5 जा 15, 5 प्लस 1 16, 16/3। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटिंग होगी यहाँ पे, बिकॉज न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर 2 इनके बीच में रिलेशन है, दोनों 3 के टेबल से कट हो सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। और यही नहीं, अभी 2 और 16 ये दोनों के बीच में भी रिलेशन है, अभी भी यहाँ कटिंग हो सकती है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब यहाँ देखिए 1/1 मल्टीप्लाई 8/1 मल्टीप्लाई करूँगा, सो 1 8 जा 8 और नीचे 1 1 जा 1। मेरा आंसर ये आएगा 8/1। और इफ आई राइट इट सिंपल 8, देन देयर विल बी नो इफेक्ट, बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर 1 लगा है या नहीं लगा है तब भी हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर में 1 की बात हो रही है, 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर लगा रहेगा, देन इट विल बी डू अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दैट फ्रैक्शन। बट अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 लगा है या नहीं लगा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। नाउ फोर्थ पार्ट, 5/6 मल्टीप्लाई टू 3/7। So 5/6 multiply 7 2 जा 14, 14 plus 3 is 17, 17/7. Now 5 will be multiplied to 17 and 6 will be multiplied to 7. So my answer will be 85 upon 6 7 ja 42. Okay. Now pause this video, note down all these solution of all the parts. All right, so I'm gonna erase all the board. Now fifth part, 3 2/5 multiply 4/7. So 5 3 ja 15, 15 plus 2 is 17 upon 4 multiply 4 upon 7. No, it is 5 3 ja 15, 15 plus 2 is 17 upon 5. So 17 will be multiplied to 4 and 5 will be multiplied to 7. So my answer will be 74 ja 68 and 5 7 ja 35. Okay, अब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, सो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। 6th 2 3 upon 5 multiplied by 3. अब यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 plus 3 is 13 upon 5 multiply 3. 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ओके, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर किसी भी नंबर के नीचे या कहीं भी वो नंबर सिंपली लिखा हुआ है, सो उसके नीचे हम डिनोमिनेटर लगा सकते हैं अपनी तरफ से, एंड दैट डिनोमिनेटर इज 1. तो 33 या 39, 5 1 जा 5. ये हमारा आंसर 7th पार्ट 3 4/7 multiply 3/5. तो 7 3 जा 21, 21 plus 4 is 25, 25 upon 7 multiply 3 upon 5. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले से ही हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट 25 एंड 5 के बीच में रिलेशन है। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. अब ये 5
अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 बाय 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7। ओके, ऐसे करना है फास्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग विच इज ग्रेटर। अब हमको यहाँ पे ये दो सॉल्व करना है और हमको बताना है कि विच फ्रैक्शन which multiplication of these fraction is greater. So let's solve the first question, 2 by 7 of 3 by 4, or you can say 3 by 5 of 5 by 8. Let's start with this 2 by 7 of mean multiplication 3 by 4. अब यहाँ पे पहले से ही मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो जब भी मैं कटिंग करता हूँ तो किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की करता हूँ, बार बार आपको पॉइंट आउट करता हूँ। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ कटिंग नहीं करता, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, नॉट कटिंग। कटिंग को हम डिवीजन कहते हैं। जब भी मैं कटिंग की बात करूँ सो इट मीन्स डिवीजन, डिवाइड करना। अब यहाँ पे ये 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1 3 जा 3 एंड 7 2 जा 14। नाउ इन दिस केस 3 by 5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 5 by 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 5 और ये 5 कट जाएंगे, 1 1 3 1 जा 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 1 जा 3 एंड 1 8 जा 8। अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर आया 3 by 14 एंड 3 by 8। अब इफ यू रिमेंबर, देन अगर हमको किसी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनका बेस सेम करना है। बेस मीन्स डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 14, सो एलसीएम ऑफ 14 एंड 8, 14 एंड 8 का मैं एलसीएम ले लूँ अगर, सो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 7 2 2 जा 4, 2 7 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। सो यहाँ पे इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर के बेस को 14 एंड 8 का एलसीएम आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। मेरा आंसर आया 56। अब यहाँ पे 14 और 8 को यानी डिनोमिनेटर्स को पहले मेरे को 56 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आई विल मल्टीप्लाई देम विथ अ नंबर। 14 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से, तब जाके वो 56 बनेगा। बट अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो मेरे को न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ओके, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। 4 से अब 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से एंड 14 भी मल्टीप्लाई होगा 4 से। इट विल बिकम 3 4 जा 12 एंड 14 4 जा 56। ओके, नाउ अब यहाँ पे 8 को कन्वर्ट करना है अगर 56 में, सो 8 7 जा 56। अब जिसमें मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा उसी नंबर से मेरे को न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हियर so it will become 3 7 ja 21 and 8 7 ja 56। all right, अब देखो इन दोनों नंबर्स में कंपैरिजन हो सकता है बिकॉज इनके डिनोमिनेटर यानी बेस सेम। अब यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, यहाँ पे 21/56 बड़ा है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 21/56 is greater than 12/56। Therefore जो हमारा आंसर आया था 3/14 is smaller than 3/8। ये है हमारा आंसर। हमको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं।
वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज सेकेंड. 1/2 of 6/7, 2/3 of 3/7. Now look, मैं सॉल्व करूंगा पहले. 1/2 मल्टीप्लाई 6/7. अब यहाँ पे 2 और 6 का रिलेशन है, सो 2 1 = 2, 2 3 = 6. यहाँ पे ये आ जाएगा 1 3 = 3 and 1 7 = 7, so 3/7. इन सेकेंड केस 2/3 ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई लगेगा. नाउ 3/7. अब 3 और 3 का रिलेशन है, कट जाएंगे आपस में. 1 1, सो 2 1 = 2 एंड 1 7 = 7. अब यहाँ पे तो पहले से ही इनके बेस सेम है. ओके, यहाँ तो इनके बेस पहले से ही सेम है, सो यहाँ तो मेरे को फिर एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो सिंपली आई कैन सी हियर दैट 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7. ओके, चलिए आज के हम यहीं पे क्वेश्चन एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम 5 6 7 and 8 ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे. ऑलराइट, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो है. और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके क्लासमेट्स हैं. और हाँ, अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा देन सब्सक्राइब कर लो यार. और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो हमें, और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो. चलिए गाइस, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.